Namaskar to everyone. As Director Madam said, it is unforgettable and very, very great experience of sharing this with Professor Vikas Swarup, Dr. Sanmukhanand. It was really uh, a kind of delight to listening him. I think it would be more by sitting in the audience, but when we are sharing the dais, it is another kind of experience. So I uh, start my role of vote of thanks initially from the Sahitya Academy. The Academy is known as the premium institution for working a lot for all the Indian languages, and this is the initiative taken by our college. A proposal has been sent to Sahitya Academy to conduct a symposium in collaboration of Sahitya Academy. So my sincere thanks to Sahitya Academy for giving us this opportunity that we could really materialize a symposium, and the topic of the symposium, which were the idea of our director madam, that the Gothic in Indian English writings and Rajasthani literature, a comparative approach. So initially when I heard about this topic, I thought how this can be correlated, but then literally when going through the process of this symposium, I realized that it is a very interesting topic, and the inaugural session itself says that yes, it will be a very interesting, and we are thankful to Dr. Vikas Swarup. Vikas Swarup sir is a very big celebrity. He is Indian bureaucrat. He has served our bureaucracy as a diplomat in Indian Foreign Services. We know him as a celebrity writer of the film Slumdog Millionaires. So see, this is the practice that we treat people who are famous by the Bollywood theme or any backing of Bollywood. We can't help it. This is in the surroundings. So it's like that. But I had an opportunity to interact with him yesterday night, today morning also, and I found him such a humble person, not like that celebrity tantrum. Yes, I am a celebrity writer, I am a diplomacy, because when people serve as diplomats or they work in embassy, they are a step up, and I met many and they feel like this only. So we thank you, sir, on behalf of Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya for taking time and coming here from Delhi. And what sir has explained, actually it's like that Gothic is not ghost or bhoot. Sir has explained various aspects of Gothic, and I was really delighted, and I think all of us enlightened a lot. My sincere thanks to Dr. Sanmukhanand, who realized us that this Gothic or Ghost series is not just created by the recent writers. It is from the beginning where we associate our epics, Ramayana, Mahabharata. If we go through the story of Krishna, we'll find that in every episode of Krishna, there is another kind of Gothic scene was there. So, sir, sincere thanks from entire Kanodia College to be part of this inaugural session. And as you are here, representative of Sahitya Academy, so we again pay sincere thanks to Sahitya Academy. Then I am delighted to thank a great thank to Professor Malashri, who was the key person to organize this symposium in collaboration with Sahitya Academy.
When we met Malashri ma'am during the Saga 2025, when she was with us, at that time, while a simple discussion, she told us, why not you can organize an activity, a kind of seminar symposium in collaboration with Sahitya Academy, and Sahitya Academy will be happy to collaborate with such a big institution. So that motivated us in our English department, and we initiated, and finally the result is in front of all of us. So our sincere thanks to Dr. Malashri ma'am. Then my sincere thanks to Dr. Rashmi Chaturvedi, who is here as part of DAS, and as whenever we interact with us, she explained the various aspects of literature in such a manner that people like me who have no interaction with literature directly, we can also understand things. And today also she explained the Natya Shastra from Indian perspective and Greek mythology, how they influence the Gothic writing. So thank you, ma'am, for making our inaugural such enriching, enlightening, and I think all the students, I saw many of you are making notes. I advise all of you to make notes if you want to make this day as a memorable day in your life, that yes, you had you were in Kanodia College and you have attended a symposium on this very specific topic. My sincere thanks to our secretary, Shri Vimal Bhatia ji, Dr. Ranjana Jetli, our teacher, as well as she is there as member management committee. My sincere thanks to Professor Sudha Rai, Professor Chandraprakash Deval sir, Dr. Reema Ahuja, who is alumni of Kanodia College, and our advisor for every kind of activity, whether it is academic or co-curricular or any other adventure. If we want to carry on, she is always there to guide us. Sincere thanks to Professor Deepa ma'am, who is with us in this inaugural system, and all other teachers I can see from various institutions, and dear students from the Kanodia College and other institution. My sincere thanks, because whenever a college, an institution organize any academic event, and if the students are not interested, then it is for no use. So by marking this huge attendance, and I know that there are few other students who wanted to attend this program, but right now we have scarcity of big hall because our big hall is under renovation. So how much we could easily accommodate it, we have accommodated these students. So thanks to all of you, and my great thanks to the Department of English, all members, Dr. Preeti, Dr. Swati, Dr. Rishita, Dr. Aditi, Dr. Bhavya, all made this possible, and we know to organize this kind of event. What we are watching now, it needs a day and night effort. So big thank you to the Department of English and all the staff of Kanodia College who are there behind this symposium. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. With this, we come to the closing of the inaugural ceremony. But of course, we have two very special sessions planned, and they're titled The Gothic as Social Critique, Women, Caste and Class, which is the first session, and the second session, Gothic Across Cultures, Translation and Folklores. We shall now be beginning with the first session. And for that, I would like to invite the guests on the dais. Professor Balashri Rai ma'am is already connected with us virtually. She is the session chair. Dr. Reema Ahuja and Dr. Rashmi Chaturvedi. The theme of the session is the Gothic as Social Critique. This promises to be an insightful discussion, as Gothic as a literary space, as we discussed, is always
considered something beyond civilizational rules and regularities. It is the space for the mad, the marginalized, the oppressed, the magical. This has always been a space of rebellion, questioning, and articulation of one's own self. Gothic literature has always engaged with power structures, identity, and the darker realities of society. Through the lens of gender, caste, and class, which are imperative lenses to look through when looking at Indian writing in particular, we shall see how the Gothic continues to be a powerful medium of critique. To give us further insights into the same, we have on the dais, albeit virtually, Session Chair Professor Malashri Lal Ma'am and eminent speakers Mr. Chandraprakash Deval, Dr. Rima Ahuja, and Dr. Rashmi Chaturvedi. I begin by extending a formal welcome to Professor Malashri Lal Ma'am. Ma'am will be chairing this session. You heard her and you know that this is going to be an extremely insightful session, particularly her views on feminist thought and her scholarship on feminist readings will help us gain a lot of clarity on the topic. I now request Principal Ma'am to welcome Mr. Chandraprakash Deval, an eminent poet, fiction writer, translator, bibliophile, and cultural historian. Sir has published 14 collections, translated the works of Ashok Vajpayee, Ramakant Raj, and others into Rajasthani. He has been the recipient of many prestigious literary awards, such as the Sahitya Akademi Award in 1979 for his poetry collection Pagi 2013. The Government of India bestowed the Padma Shri on him in recognition of his contributions to literature in 2011. At present, he is actively involved in the development of Rajasthani language and literature. Welcome to Kanoria College, sir. We can't wait to hear from you. I now request Dr. Preeti Sharma to welcome Dr. Rima Ahuja. And writer, Dr. Rima Ahuja has a PhD from Cambridge University. She is currently Consultant Director at the Maharaja Savai Man Singh II Museum, City Palace, Jaipur, Managing Trustee of the Jaipur Virasat Foundation and Visiting Professor at Delhi School of Planning and Architecture at Ahmedabad University. A former member of India's National Monuments Authority and a distinguished international academician of Minnesota University. She is a fellow of the Royal Asiatic University's MSID India program for 12 years and also faculty director, New York State Independent College Consortium for Study in India program, in addition to holding other academic posts. The author of 9 books and recipient of the Publishers Recognition Award, 100 academic papers and newspaper articles, and is on several governing boards and committees and councils. Welcome, ma'am. It's an honor to have you here. So we have the privilege to listening to her lecture. I would now like to request Dr. Swati Dhanmani to welcome Dr. Rashmi Chaturvedi. With over 4 decades of academic and administrative experience, she has served as the principal of Kanoria College for 18 years, a PhD in American Literature. She is a Fulbright Fellow and the Fellow of the American Council of Education, Washington, D.C. She has authored and translated several works, including publications with Sahitya. Women, Caste and Class. After the excellent inaugural session where Shri Vikas Swarup and others opened up the theme of the Gothic to the possibility of new and contemporary interpretations in Indian literature and pointed in the direction of how it is applicable to Rajasthani literature, I'm indeed very excited to be chairing this session and look forward to our wonderful panel speakers in giving the views that they have on the subject. Just a word or two about the title of the session itself, that social critique is extremely significant for literature, I believe, because it's no point in talking about books unless we relate them to the life that is around us. And that is why particular sub-themes, such as the place of women or the issue of caste and class, which remain significant in the hierarchical structures of India and the ethos within which we live and discuss, write, and develop in, is something that needs to be considered through the specific lens of a literature department as we are doing at Kanoria College today. So I will not take up more time now, but I will do a few remarks perhaps at the end
of the session. I would call upon our first speaker, Shri Chandraprakash Devarji, to give his views on the theme of the Gothic as social critique. Over to you, Devar Saab. Thank you. Thank you. मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सब लोगों के मध्य आ सका, और उससे भी मुझे सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांग लूँ कि मैं अंग्रेजी में नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि मैं अगर अंग्रेजी बोला तो आप मेरी अंग्रेजी ही सुनते रहेंगे, तो ये सब्जेक्ट नहीं सुन पाएंगे, और उसी में सारा समय निकल। बहरहाल मैं इस बात के लिए साहित्य अकादमी और आपके कनौड़िया कॉलेज को बहुत उसको धन्यवाद देता हूँ कि एक ऐसे मौजू विषय पर ये इस तरह का आयोजन करना इस कठिन समय में, इस आधुनिक समय में, और जब मैं इस कठिन जब कहता हूँ तो आधुनिक समय वो समय है जहाँ सब परंपराएं ख़त्म हो रही हैं। तो जब परंपराएं ख़त्म होंगी तो आप जानते हैं कि ये गोथिक साहित्य की क्या बिसात है कि वो कब तक टिका रह सके। लेकिन फिर भी ये जो तुलनात्मक अध्ययन की ये जो आप लोगों ने जो विषय चुना, और मुझे लगता है कि मालाश्री जी ने, प्रोफेसर है, उन्होंने ही किया होगा ये, तो वो भी एक अच्छा संयोग है कि वो चाहती रही कि ये राजस्थान के अंदर ये जो संपदा है, ये साहित्यिक संपदा बाहर कैसे आए, क्योंकि साहित्य अकादमी के अलावा मेरी भाषा को, राजस्थानी भाषा को तो संविधान के 8वीं अनुसूची में भी नहीं लिया गया। तो ऐसे अवसर पर के 75 वर्षों से जो भाषा डिस्कार्ड कर दी गई हो, जिसका गला घोंट दिया गया हो, जिस भाषा को आप बोल नहीं सकते हो संविधानिक दृष्टि से, वैसे तो बोलते ही हैं, और इसीलिए मुझे आज दूसरी भाषा का माध्यम लेकर के हिंदी में आपसे बोलना पड़ रहा। मैं राजस्थानी में भी बोल सकता हूँ, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि आप फिर समझेंगे नहीं समझेंगे तो परेशान होंगे। अच्छा संयोग है कि अध्यक्ष जो है वो वर्चुअली मेरी बगल में बैठी हैं। ये आधुनिक समय का ये वरदान है कि वो दिल्ली में हैं और यहाँ अध्यक्षता कर रही हैं। डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी जी से मैंने अभी पूछा, मैं क्या हम लोग पहले मिले हैं, तो मुझे पता लगा कि आज से लगभग 20-22 वर्ष पहले इन्होंने मेरी एक कहानी का कथा के लिए ट्रांसलेट किया था। बस में रोज एक कहानी थी, और उसके बाद में भी एक मेरी किताब थी बोलो माधवी, उसके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी रुचि दिखाई। रीमा पूजा जी मेरे साथ हमारे राजस्थान की हैं, हमें गर्व है, इतिहास की बहुत बड़ी स्कॉलर हैं, और इसमें आएगा गौतिक विषय में, तो वो विषय में मैं बता दूंगा आपको कि वो उसके ऊपर रोशनी भी डाल सकती हैं। क्योंकि सबसे पहले तो मैं इसके उद्घाटन सत्र को महत्वपूर्ण ही नहीं, अविस्मरणीय मानता हूँ। अविस्मरणीय। हमारे यहाँ पर जब मैं स्वरूप साहब को सुन रहा था, तो हमारे यहाँ पर एक मिसल मशहूर है, उसमें ये कहा जाता है कि डिप्लोमेट अगर 1 घंटा बोलता है तो आप उसमें से एक लाइन का भी मीनिंग नहीं निकाल सकते। मतलब वो जो 2 घंटे तक 2 आदमी होंगे और अगर 2 देशों की टॉक होएगी तो उसमें से आप सब्सटेंस रूप में कुछ नहीं निकाल सकते। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि वो राजनीतिक यहाँ नहीं आए इस डायस पर, बल्कि उनका वो लेखक आया, और वो विद्वता भरा उनका वो जो सोच मैंने सुना, इतनी गहरी अंतर्दृष्टि इस विषय को लेकर करके ये संभव नहीं थी। हालांकि उन्होंने कोई विषय छोड़ा ही नहीं, कोई एस्पेक्ट नहीं छोड़ा कि जिसको उन्होंने टच नहीं किया। खाली गोथिक साहित्य के से इतर भी जो उन्होंने वो प्रतीक रूप में जो इस्तेमाल हुआ है, महाराष्ट्री जी ने जो 3 किताबें जो चुनी थी वो भी सब गोथिक के प्रतीक के रूप में है। लेकिन जब हम इस साहित्य पर बात करते हैं, जब मुझे सबसे पहले ये
प्रपोजल मिला, निमंत्रण मिला, तब मैंने पूछा कि मैंने कहा भाई आप वो तो भेज दीजिए कि विषय के बारे में की नोट क्या होगा, क्या थोड़ा मुझे गाइड कर दें, क्योंकि दुर्भावना तो नहीं कहूँगा, हमारा दुर्भाग्य है कि मैं अपनी भाषा में गोथिक के लिए कोई शब्द चुन नहीं पाया। मैं शब्दकोश मतलब इवन यहाँ तक कि मैं हिंदी में भी, मैं तो नहीं कह सकता इतना आधिकारिक रूप से, लेकिन राजस्थानी के अंदर तो इस साहित्य की कैटेगरी के लिए कोई भी शब्द, पारिभाषिक शब्द बिल्कुल नहीं मिला मुझे। तो मुझे लगा कि जब ये भी नहीं है, और यूरोप में ये जो गौथिक साहित्य है ये 18वीं सदी में शुरू हो रहा है, जैसा स्वरूप साहब ने भी थोड़ा सा उस पर संकेत दिया था, तो वो 1700 और कुछ में पहला उपन्यास आता है ये इसका वालपोल का द कैसल ऑफ ओटरेंटो, यहाँ से ये शुरुआत होती है। उसके बाद तो जो जहाँ से ड्रैकुला की आपने शुरुआत की थी, और सौभाग्य ये है कि मैं भी उसी ड्रैकुला के जो उपन्यास है या जो उसका नायक है उसका कंपेयर करूंगा कि राजस्थान में उस ड्रैकुला का प्रतिरूप क्या है और कैसा है। वो गौथिक साहित्य में जो यूरोप की जो दृष्टि थी वो क्या दृष्टि थी, इसको उपजाने में, इस जैना को बाहर लाने में क्या दृष्टि थी। तो मैं जब इस पर सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हमें खाली यूरोप के 18वीं सदी को नहीं देखना है। वो मैं अगर देखता हूँ राजस्थान में तो ये भयानक विभत्स और वीर और ये तो भरा पड़ा है। 80% मेरा लिखा हुआ साहित्य ही युद्ध का साहित्य है, वैलर का साहित्य है। विभत्स आप कल्पना नहीं कर सकते कि युद्ध में जो कवि समय होंगे, एक बहुत लंबा विषय हो जाएगा, मैं उन काव्य रूढ़ियों पर नहीं जाऊंगा। वो 20-30 काव्य रूढ़ियाँ जिन्हीं पर पूरा का पूरा लिटरेचर रहा, और लगभग सैकड़ों वर्षों तक सिर्फ और सिर्फ यही साहित्य प्रमुखता से रचा गया। लेकिन मेरा एक सौभाग्य यह है कि राजस्थानी में जितना भी शास्त्रीय साहित्य है उसको यदि मैं उसका तकमीना करूं तो उसके बरक्स जो लोक साहित्य है, मेरा लोक वाङ्मय जो है, जो ओरल ट्रेडिशन में, कंठ परंपरा में जो साहित्य है, वो उससे कई गुना है। और बल्कि मैं जब इसकी तरफ देखता हूँ, लोक साहित्य की तरफ, लोक वाङ्मय की तरफ आकर, तब मुझे लगता है कि ये टिप ऑफ आइसबर्ग है जो मुझे दिख रहा है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इतना गंभीर, इतना समृद्ध कोई साहित्य की एक परंपरा हो सकती। लोक में, राजस्थानी लोक में ऐसा कोई विषय नहीं है जो उसमें उपस्थित नहीं हो। साहित्य है, इतिहास है, एम सो कल्पना करिए राजस्थान में एक, अभी तो नहीं कह रहा हूँ, अभी थोड़े दिनों पुरानी एक गणना थी, तो उसने एक एनजीओ ने एक सर्वे करके बताया कि मेरे राजस्थान में 1,33,000 प्रोफेशनल गायक हैं, सिर्फ प्रोफेशनल गायक हैं। और वो जो गा रहे हैं, जिसके बारे में उद्घाटन सत्र में भी कहा गया कि बाबूजी की पढ़, और ये जो दो बड़े नैरेटिव हैं राजस्थानी के, बाबूजी का पढ़ और एक बगड़ावत। और जब हम बगड़ावत को जब हम देखते हैं तब आपको जब जो एथिक जो पृष्ठभूमि है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो मैं जब इसके बारे में सोच रहा था तो सबसे पहले मैंने सोचा कि ये कैसे इजाद हुआ होगा। तो मुझे लगा कि हम लोगों ने, मतलब मेरा मतलब भारत में, हम लोगों ने इस त्रिलोक की, हमारी जो सृष्टि है उसकी कल्पना 3 लोकों से की। और 3 लोक इस तरह से बनाए कि एक तो हमारा ये जो मृत्यु लोक, हमारा जो जगत है, संसार, और दूसरी जो कैटेगरी थी इसे हम लौकिक कहते हैं, ये लोक का जगत था। और दूसरे पक्ष में अलौकिक संसार है। अलौकिक संसार के 2 भेद, एक है जो कि दिव्य और ऊर्ध्वगामी है, जिसे हम देवता कहकर करके मानते हैं, जिन्हें हम देव कहते हैं, और उस लोक को हम स्वर्ग लोक या उस तरह की संज्ञा से अभिहित करते हैं। दूसरा भी अलौकिक था,
लेकिन वो अधोलोक है, उसमें सारे के सारे जितने भी शैतान का कुनबा है ना, और वो इतना लंबा है कि वो, जिसे अंग्रेजी में एक मुहावरा है ना कि शैतान की आंत, वो इतना लंबा है कि जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। मैं जब ये सोच रहा था तो मैंने देखा कि राजस्थान में अगर मेरी भाषा में ये शब्द हैं, फिर मैंने कहावतें देखी, एक डायन को लेकर करके 14 कहावतें मैं लेकर के आया हूँ, पर अभी इतना समय नहीं है कि मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि डायन की व्याप्ति कितनी है मेरे लोग, उसकी प्रेजेंस कितनी है। डाकनिया बेटा दे के ले, डायन जो बच्चे खाती है, तो वो कहावत है कि डायन कोई बच्चा देगी क्या किसी को, निपुती को, वो तो खाने वाली है। फिर कई डायन के हाथ में, डाकनरा हाथ में मसाल, उसको नहीं दिखे तो उसके हाथ में ऐसा दीपक है कि देख देख के खाती है। तो इस तरह से मतलब 14 कहावतें सिर्फ मैंने अपनी स्मृति से जब यहाँ आ रहा था तब तक में मैंने नोट की। और जब मैं ये देख रहा था कि अब उनकी उस कुनबे में कौन कौन निवास करते हैं, तो मुझे लगा कि सिर्फ खाली डायन, हम सामान्यतः इसी डायन शब्द में ही संतुष्टि कर लेते हैं और उधर भूत कह करके संतुष्टि कर लेते हैं। लेकिन जब मैं इनका कुनबा देखने लगा तो मुझे लगा डायन, डाकण का मतलब राजस्थानी में डाकण क्या है, श्यारी क्या है, सिकोत्री क्या है, चुड़ैल क्या है, आपके साकणी क्या है। और इस तरह से लगा कि ये मतलब इतने पात्र, इतनी वैरायटी। अब उसमें से कई एक इनकी जो परिभाषा अगर मैं देने लगूं तो उसमें से कुछ एक तो ऐसी हैं कि जो बच्चे को खाती है, कुछ एक ऐसी हैं जो रणभूमि में जो मारे जाते हैं उनका कलेजा खाती है, फिर कुछ एक ऐसी हैं कि जो दूध दही की मंत्र से दूध दही की चोरी कर लेती हैं, खा लेती हैं। तो मैं ये सोच रहा था, और इधर जब मैं उसके दूसरा पक्ष, दूसरे लिंग की तरफ देखता हूँ तो भूत है, पिशाच है, प्रेत हैं, आपके रागस हैं, जो खरीस है और कबीस, जिसको कबीस भी कहते हैं। और खरीस की कल्पना तो बहुत अद्भुत है। आप ये देखेंगे एक ऐसा राक्षस कि जिसके सर नहीं हो, खाली धड़ होता है। तो ये भी अगर उपस्थिति है वहाँ, मेरी भाषा में अगर ये उपस्थित हैं, तो इसका मानी है कि ये साहित्य भी मेरी इस भाषा में रहा होगा। मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को मतलब ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, अगर कोई उस तरह से न लें, मेरी बहुत करबद्ध प्रार्थना है, क्योंकि इन दिनों ये बहुत खतरनाक समय है। तो मैं जब अपने देवता को देखता हूँ, मैंने एक राजस्थानी का एक, मैंने कहा ये अलौकिक क्या चीज़ है, ये इन्होंने डिफ्रेंशिएट कैसे किया होगा। तो लौकिक तो वही है जैसे हम हैं, और अलौकिक क्या है कि वो हमसे हर बात में अलग है। वो इस लोक में, इह लोक में उसका कुछ भी नहीं है, न आकार, न प्रकार, न उसकी आदतें, न उसकी शिकार, वो सब अलग। तो मैं सबसे पहले एक राजस्थानी का दोहा मैंने अपने दादा से सुना था, तो वो मुझे याद आया कि ये आकार कैसे दे रहे हैं। ये देखिए, ये सब कल्पना प्रसूत है, आप इसको रियलिटी में यूँ मान के मत चलिएगा। ये बात ठीक है कि हम लोगों ने ये जो साहित्य की सृजना हुई, आप लोगों में जिज्ञासा, रहस्य, भय, कौतुक और भी कई एक जो रोमांच, और ये सब भाव भरने के लिए ये किया गया है इस साहित्य का सृजन। वो दोहा था कि रावण जिण दिन जलमियो 10 मुख एक शरीर, जननी जन सांसे भई किण मुख पाऊं खीर। कि जब रावण जब पैदा हुआ उस समय उसके 10 सर थे, तो उसकी माँ को आश्चर्य हुआ और वो किन कर्तव्य विमूढ़ हो गई कि मैं इसके कौन से मुंह को अपना दूध पिलाऊं। 10 आनन है, मतलब 10 मुंह है। आप कल्पना करिए कि इस लोक का कल्पना प्रसूत भी हो, 10 माथे, एक सहस्त्रार्जुन है, 1000 हाथ हैं उसके, एक देवी है उसके 52 हाथ हैं, महिषासुर मर्दनी के 18 हाथ हैं। तो आकार में जो लोक में जो उपस्थित है, लोक में जो जी रहा है, उससे बिल्कुल बरक्स अलग आकार दिए गए हैं। हमारा एक देवता जिसके 3 मुंह हैं,
हमारा एक देवता, हमारे एक भी देवता की दाढ़ी मूंछ नहीं है। हमारा एक देवता है जिसके सफेद दाढ़ी है, क्योंकि वो सृष्टि का आदि से सृजन करने वाला है। तो यह जो हमने अलौकिक जो संसार की सृष्टि की, ये इसको धर्म की दृष्टि से न देखें। और दूसरी तरफ जो अधोलोक के निवासी हैं वो भी अलौकिक जीव थे, उसमें ये राक्षस, बेताल, प्रेत, भूत, ये सब कुछ थे। राजस्थानी में ये जो मामला था, मैं आपको और भी कह सकता हूँ कि जो यूरोप में जो ये साहित्य की का जन्म हुआ, और उसकी 3-4 सीलेंट फीचर्स हैं, उसकी विशेषताएं हैं। एक विशेषता है कि डर और रहस्य से भरा वातावरण होगा। तो यहाँ पर मेरे यहाँ तो पूरी की पूरी जितनी दैत्यों की और जितनी जिन्न की कथाएं हैं, उनमें आप पाएंगे कि वो एक राजकुमारी को अपहरण कर करके ले जाता है। निर्जन लोक है, उसमें 7 मंजिल की एक हवेली है, उसमें कोई गेट नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, उसमें ले जा करके कैद कर लेता है और वो खुद अपने शिकार के लिए बाहर निकलता है। मैं देख रहा था कि ये जो प्रतीक है, ये मुझे आदि बिंब लगा। और जब मैं इसको आदि बिंब कहता हूँ तो 5000 वर्ष पहले भारतवर्ष में रामायण लिखी। उद्घाटन सत्र में इन्होंने षणमुखानंद जी ने इन्होंने उसकी तरफ संकेत भी किया था कि हमारे यहाँ पर, क्योंकि लोग मानते नहीं है ना कि आपको रामायण में भी ऐसे तत्व हैं, कि महाभारत में ऐसे तत्व हैं। तो ये उसका ज्वलंत उदाहरण है। सीता का हरण हो रहा है। वाल्मीकि लिख किससे रहे हैं? वाल्मीकि लिख रहे हैं एक क्रौंच पक्षी जो मैथुन रथ था, उसको एक बहेलिये ने मार दिया, और उसकी जो क्रंदन था, उससे पहली कविता निकली। और मेरे हिंदुस्तान को, ये भारत को ये गर्व है कि मेरे जमीन पर कविता ने जन्म लिया। और पहला ही श्लोक जो था वो अनुष्टुप श्लोक निकला। और उसी के प्रतीक रूप में, उसी क्रौंच के पक्षियों के जोड़े के वियोग को लेकर उन्होंने जो कल्पना की, वो उस नायिका की और उस नायक की कल्पना की, जहाँ पर नायिका का अपहरण हो जाता है और नायक उसके लिए रोता है। ये क्रंदन उस पक्षी का क्रंदन है, नर पक्षी का, जहाँ पर उसकी माता को मार दिया गया। तब मैं ये सोचता हूँ कि ये जो चीजें हैं, अब ये जो जितनी भी जिन्न की या हमारे दैत्य की कथाएं हैं, उनमें सब में उसे एक राजकुमारी को एब्डक्ट कर दिया जाता है, अपहरण कर दिया जाता है। ये बीज प्रतीक है जो रामायण काल से लगभग 5000 वर्षों से लगातार मेरे साहित्य में, मेरे ओरल ट्रेडिशन में, मेरे लोक में, सब जगह उसकी गहरी व्याप्ति है। अब समझ में आता है कि वो क्या चीज है कि जो मनुष्य, ये तो आकार में बताया, अब इसी तरह से जो अधोलोक के जो निवासी हैं, वो जो शैतान का जो परिवार है। अब आप देखिए ईसाइयत में या और दूसरे जो भी दर्शन हैं, उन दर्शनों में ऐसा कहीं नहीं है। उनका तो ईश्वर एक ही है। हमने हमारे तो यहाँ पे किसी के हाथी का मुंह लगा हुआ है, किसी के क्या लगा हुआ है। तो ये बड़ा अजीब सिलसिला था, क्योंकि लोक से अलौकिक को अलग करना था और अलग दिखना चाहिए, इसलिए हमने ये कल्पना की। और इसी तरह अधोलोक में भी ऐसी ही कल्पना की कि एक बिना माता का खईस भी हो सकता है, भूत हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। अब ये था कि ये सब किस लिए बनाए गए। हाँ, आगे मैं और बताऊंगा कि दूसरी विशेषता थी इसकी कि अंधकारमय और वीरान स्थान, जिसकी तरफ स्वरूप साहब ने जिक्र भी किया और जिसका उदाहरण भी दिया इन्होंने, भानगढ़ का जो किला है हमारा, और उस पर प्रोफेसर भूजा जो हमारे साथ हैं वो इस पर बहुत अच्छी तरह से दर्शन डाल सकते हैं। उन्होंने स्वरूप साहब ने कुलधरा गांव का भी जिक्र किया जो एक रात में उजड़ गया। इसके अलावा भी मसान जो कल्पना है, मसान में आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ता। जो ही बच्चे को या कोई पासर भाई को पता लगता है कि ये मसान है, वो अपने आप डर जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है कि ये भूतों का निवास और इन सब ऐसी आत्माएं यही निवास करती हैं। तो दूसरी तरफ हमने जो अधोलोक का जो सृजन किया मनुष्य ने, और वो सृजन ये था कि उसमें हमने बनाए, आप देखें रावण का तो मैंने आपको जिक्र कर ही दिया कि जिसके 10 सर हैं, कंस अलग है, पूतना कैसे रूप में लेकर के आती। और ये अधोलोक के जो निवासी हैं उनको एक वरदान है। वरदान क्या मतलब, उनकी एक विशेषता है कि वो मन चाहा आकार ले लेते हैं।
कृष्ण को मारने के लिए जब पूतना आई थी तो स्त्री बनकर करके आई, और वो दूध पिलाने के लिए आई, और वो चाहती थी कि ये दूध पीते ही ये बच्चा मर जाएगा क्योंकि वो उसमें जहर है, लेकिन वो कृष्ण उसको दूध पीते पीते मार डालता। तो ये जो दूसरा जो अलौकिक संसार था उसकी स्थापना हम लोगों ने, मनुष्यों ने इस रूप में की। तीसरी साहित्य की विशेषता थी कि मानसिक रूप से पीड़ित और विक्षिप्त पात्र, ये बहुत जरूरी है मित्रों, क्योंकि जब तक हम उस विक्षिप्ति का जिक्र न करेंगे तब तक हम हमारी विक्षिप्ति को, व्यक्ति आपके भीतर जो विकृति है उस विकृति के बारे में आप सोच नहीं सकते। ये बहुत ही ऐतिहासिक कथा है रीमा जी, हो सकता है बता दें आपको कि ये जिस एरिया जहाँ हम बैठे हैं इसे ढूंढाड़ कहते हैं, और ढूंढाड़ का जो जन्म है वो विग्रह राज तृतीय जो बहुत बड़ा रूलर था चौहान डायनेस्टी में, तृतीय जो था उसके ऊपर, और बड़ी जानदार कथा है। उसमें मैं सूत्र में बता दूंगा क्योंकि इतना समय नहीं हमारे पास, मैं तो असल विषय पर बाद में आऊँगा। तो वो उसकी रानियां, बहुत सारी रानियां थी, तो सौतीन दाह के कारण से कि ये इस रानी के को ज़्यादा लिफ्ट देता है, तो उसने क्या किया कि किसी तांत्रिक से मिलकर करके एक ऐसी दवाई ढूंढी कि वो उसको नपुंसक बना दे, उसको पति को, और उसने चुपचाप उस रानी ने उस राजा को खिला दिया। परेशान हो गया, विक्षिप्त हो गया वो, क्या वो क्या करे इस दुनिया में। बहुत बड़ा विजेता है जो विग्रहराज तृतीय है, बहुत बड़ा। ये बिसलपुर जहाँ बांध है हमारा, ये बिसलपुर उसी का बनाया हुआ है, पाल बिसला उसका बनाया हुआ। खैर, और वो इतना वीर और इतना बड़ा आदमी है कि बस उसकी वो बातें छोड़ दीजिए। फिर वो भटकता भटकता एक शिव के मंदिर में जाता है, इसी बिसलपुर में। अभी वो मंदिर मौजूद है जो पानी में डूब जाता है। तो वहाँ जा कर के उसे एक संत मिलता है उसकी परिक्रमा में, और वो कहता है मेरी एक समस्या है। वो उसे एक दवाई दे देता है। वो दवाई जो थी वो उसकी एंटीडोट था, और उससे उसकी काम वासना जो है वो कई सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। और उसके बाद वो आता है, देखिए एक मनुष्य का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, इसको भी जरा सा ध्यान रखिए कि इतना बड़ा ऐतिहासिक पुरुष, इतना बड़ा राजा, कैसे उसका ट्रांसफॉर्म होता है। कहानी में ये जो मैं निवेदन कर रहा था, तो इस किस्से में आगे ये होता है कि पुष्कर के पास एक साध्वी है, उसके साथ वो अनाचार करता है, व्यभिचार करता है, और वो श्राप देती है कि तू जो है राक्षस हो जा। तो वो क्या करता है कि अपनी भूख को मिटाने के लिए पूरे एरिया में पूरी रात भर तक वो भटकता है। तो ये जो अपना एग्रीकल्चर कॉलेज है ना जोबनेर, ये जोबनेर का क्षेत्र से लगा करके वो कभी तो इधर आता है, वो सांबर का रहने वाला, वो इधर आता है। तो वो जिस एरिया में घूमा है और उसका नाम हो जाता है ढूंढ राक्षस, क्योंकि वो अपने शिकार को ढूंढ ढूंढ के खाता है। और वो जिस एरिया में जहां तक जाता है उसे ढूंढाड़ कहते हैं, जिसकी जयपुर उसका सेंटर है। तो आप ये देखिए कि ये मैं कोई वो साहित्यिक क्रिएटिव बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लोक ने या हमारे शास्त्र ने इस तरह के पात्रों की सृष्टि की। होते सब मनुष्य हैं, और ये साहित्य किसके लिए लिखा गया, कोई उस अलौकिक साहित्य या उन पिशाचों के लिए थोड़ी लिखा गया। ये मनुष्य को टीच करने के लिए, मनुष्य को समझाने के लिए, और उस मनुष्यता को बचाने के लिए, जो सबसे मनुष्य होने के नाते, इस लोक में आने के नाते हमारा सबसे बड़ा फर्ज अगर कुछ हो सकता है तो वो यही है कि हम उस मनुष्यता को बचा लें। हर दैत्य को मारता है, कौन मारता है? मनुष्य। लोक के हाथों मारा जाता है, लौकिक पुरुष मारता है उसे। अलौकिक पुरुष शिकार कर लेता होगा, कुछ भी खा लेता होगा, ये नहीं। लेकिन जो हमारा नायक है वो बड़ा अजीब लगेगा आपको। आप रामायण में भी देख लें, रामचंद्र के पास में कोई आपको विशेष आयुध भी नजर नहीं आते। एक यहाँ पर उत्तरी है और एक धनुष है, बस पाँव में जूती नहीं है। वो रावण कहता है कि ये जो बेयर फीटेड आदमी है ये मुझे मारेगा, मुझसे लड़ेगा। जिसके रथ छोड़ कर करके उसके पाँव में जूती नहीं है, वो क्या खा करके मुझसे लड़ेगा। तो जो लोक है, कृष्ण को भी आप देखेंगे, हमारे जितने अवतार हैं उनको आप देखेंगे, और हम जो हमारा लोक है, हम जो मनुष्य हैं, उसमें तो आप देख ही रहे हो कि हमारे 2 हाथ है, 2 पाँव हैं,
2 आंखें हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमारा तो देवता तीन आंख हो सकती है उसके। एक श्राप के कारण से ये उसके रोम रोम में आंखें हो जाती है इंद्र के। तो ये जो सारी चीजें थी ये अलौकिक कृत्य, और ये अलौकिक कृत्य के कारण से मैंने अपने समझने की दृष्टि से इस गौथिक साहित्य को अलौकिक साहित्य कह करके समझने की चेष्टा की। अब एक घटना इधर होती है हमारे यहाँ, और मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, और वो घटना ये थी कि महाभारत का सृजन होना। और वेद व्यास ने, महाभारत एक बहुत बड़ी घोषणा करता है, वो कहता है कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी घोषणा थी। देवता हो, भगवान हो, कुछ भी, भगवान भी हमारी सृष्टि है, हमारा क्रिएशन है, तो इससे श्रेष्ठ कोई नहीं। और बंगला के एक बड़े महाकवि हुए हैं चंडीदास, उन्होंने कहा सबेर ऊपर मनुष्य। तो ये जो चीज है कि सबसे ऊपर मनुष्य है, इसको सिद्ध कैसे करो? इसको सिद्ध करने के लिए, क्योंकि हर मनुष्य एक ऐसा है कि जिसके अंदर, जिसको अगर हम डाइसेक्ट करें, जिसको वो करें, हम एनालिसिस करें, तो हम पाएंगे कि हम लोग दोनों पक्ष हमारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष हमारे में मौजूद है। ये हम ही हैं जिनकी भीतर, हमारे भीतर ही ये दानवों की दुनिया बसती है, और हमारे भीतर ही ये देवताओं की जो दुनिया है ये बसती है, और ये बराबर बराबर बैलेंस है। इसलिए जिस आदमी में पिशाची वृत्तियां कम होंगी वो वृत्तियों वाला महापुरुष कहलाता है, जिसको हम सुपर नेचुरल पर्सन भी कह सकते हैं। और इस तरह से, तो इस सूत्र को पकड़ करके जब मैं राजस्थान को देख रहा था, राजस्थानी लिटरेचर को, तो मुझे सबसे पहले 18वीं सदी में कुछ नहीं मिला, और क्या वातावरण था, आधुनिकता का क्या वातावरण था वो मैं बता चुका। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि 20वीं सदी में एक विजयदान देथा नाम का एक लेखक मेरे इस भाषा के क्षेत्र में पैदा हुआ। वो मेरे गुरु रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा। मैं 33 साल 33 ईयर्स तक उनके संसर्ग में रहा हूँ, और ये राजस्थानी में लिखना और ये सब कुछ ये अलग बात है। तो और इसके बाद में मैं सोच रहा था, जब मैं उनकी एक किताब को पढ़ रहा था, और वो किताब मैंने इसी गौथिक साहित्य की के सर्वे के लिए, इसको ढूंढने के लिए कि मेरे राजस्थानी में है क्या, तो मुझे प्राप्त हुआ एक उपन्यास। देखिए, द कैसल से शुरू होता वो भी उपन्यास है, ड्रैकुला भी उपन्यास है, स्वरूप साहब ने जो लिखा है, राइटर है, इन्होंने भी उपन्यास लिखा है। उपन्यास हमारी विधा नहीं है, ये यूरोपियन विधा है। तो मेरे लोक में तो आ ही कैसे सकती है, उपन्यास कैसे आ सकता है भाई? उपन्यास तो ये अभी की चीज है, जो इजाद भी तो यूरोप का है। पाश्चात्य जगत ने सारी दुनिया को नॉवेल दिया, तो मेरे यहाँ तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और सवाल ही पैदा नहीं होता तो इसलिए मेरे यहाँ उसके लिए, उपन्यास के लिए कोई शब्द नहीं है मेरी भाषा में। मराठी में जैसे कादम्बरी कह देते हैं उनको, जैसे गुजराती में नवल कथा कह दी उन्होंने, पर मेरे राजस्थानी में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। तो हम लोग, जो लोगों ने, विजयदान देथा ने एक अपनी बातानी फुलवाड़ी में 14 वॉल्यूम है, विद्यार्थियों के लिए बता दूं, उसमें से जो तीसरा खंड है बातानी फुलवाड़ी का, बातों की बगिया हिंदी में होगा, उसमें 8 राजकंवर नाम का एक उपन्यास है। अब मैं वो उस तुलना के पार्ट पर आ रहा हूँ, ताकि मैं स्वरूप साहब को भी कुछ बता सकूं और आप लोगों को भी कुछ बता सकूं। फिर एक जो तीसरी स्थिति थी उस साहित्य की विशेषताओं में अलौकिक शक्तियों और भूत प्रेत की उपस्थिति। उन्होंने बहुत राइटली एक उदाहरण दिया, आपने मणिकौल की फिल्म थी दुविधा, और जो पहली जो फिल्म बनी उसमें जो प्रतिनायक है वो प्रतिनायक भूत है। अब आप कल्पना करें, जो कि मेरे गुरु की पास में ये सिफत थी, मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन बहुत कम ऐसी सिफत देखी कि एक आदमी लोकसभा का, लोक कथा का जो स्ट्रक्चर है उस बुनावट को नहीं छोड़ता, उन मोटिव को नहीं छोड़ता, जो मूल कथा है उसमें कहीं हेर फेर नहीं करता, लेकिन जब वो उसको क्रिएट करता है
और तब वो अपनी कलम के जो मास्टर स्ट्रोक होते हैं उससे ये कर लेता है कि आप पहली ये जो दुविधा कहानी है, इसे जब आप पढ़ेंगे तो आपकी सिंपैथी भूत के साथ हो जाती है। वो आदमी में ये सिफत थी कि जो नॉन रियल है उसको रियल बना देता, और जो रियल उसका हस्बैंड है वो कमाने माया के लिए वहां चला गया। जब ये माया के लिए परदेश जाना, यह जो प्रवृत्ति है मनुष्य की, ये मनुष्यता के खिलाफ की प्रवृत्ति, और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो वहां से उस भूत को तो ऐसा दिखाता है जैसे मतलब प्रीत का, प्रेम का मतलब पराकाष्ठा है। और वो जो है वो एक, उसका बाप कहता है कि रोज 1 रुपया ला, एक मोहर लेके आ, तो वो भूत वो बन कर करके वो रोज देता। भूत के लिए क्या प्रॉब्लम है? तो लेकिन वो ये करते हैं कि वो एक फैंटेसी से ऐसी रचना करते हैं क्योंकि आदमी चौंक जाता है। और ये कथा का जो बेसिक रूप है वो एक तेजरा की कथा की कहानी है। ये एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आता है तो हमारे लोक में ये कहानी सुनाई जाती है कि ताकि जैसे भूत भाग गया था उस तरह से ये बुखार चला जाएगा। तो जब दुविधा जो मैंने ये कहा ना कि इसमें भूत की उपस्थिति जिस साहित्य में हो जाए तो यहाँ मुझे दिखती है, ये भी विजयदान देता कि यहाँ पे मिलती है। मुझे 2 कहानियां और मिलती, उनका जिक्र भर कर दूंगा क्योंकि ये मैडम शर्मा ने जिस काम के लिए बुलाया है, ये कहेंगे कि आपने उसकी सामाजिक औचित्य की आपने चर्चा नहीं की। आपको विषय दिया गया था स्त्री और वर्ग और जाति, और तो 2 उदाहरण छोटे छोटे उसको देख करके फिर मैं वापस इस पर आऊँगा 8 राजकमल पर। एक कथा है भूत रो कटोरो। कटोरा समझते हैं, बाट की जिसको क्या कहते हैं, बाउल। तो एक सेठानी है, वो एक उसका जो बाउल है वो पानी लेने जाती है। तो पानी लेने जाती है तो क्या भूत का ये जो दैत्य है, इनका एक खासियत ये कि ये पानी के नीचे रहते हैं, कि बस्ती जो है पानी के नीचे है। तो वो जब डोलची डालती है अपना पानी खींचने के लिए, तो वो भूत जो अंदर है, वो दैत्य जो अंदर पानी के नीचे है, वो उसे वो डोलची खाली कर देता है, वापस ऊपर खींचती है। कहते अभी तो भरा था इसको और ये पानी हुआ ही नहीं। और राजस्थान में क्या पानी की स्कैर्सिटी आप जानते हैं। हमारे यहाँ पर मीलों चल कर करके औरतें पनिहारियाँ पानी लाती थी। तो पानी कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसीलिए इस कथा के अंदर ये जोड़ा गया है। और वो डोलची खाली कर देता है क्योंकि वो भूत है, इसीलिए नेगेटिव है। और देखिए ये सामान्यतया जो हम क्लासिफाई करते हैं वो इन्हीं अर्थों में करते हैं। वो अत्याचारी होगा, वो आतंकी होगा, वो लूट करेगा, वो जो कुछ भी मॉलेस्टेशन करेगा, वो जितनी भी नेगेटिव बातें हैं वो सब करेगा। ये प्रतीक है। लेकिन विजयदान देथा को वो क्या करिश्मा करते हैं राजस्थानी में, वो मैं उस पर बाद में आऊँगा। तो वो भूत यूँ कर खाली कर देता है। कहता यार ये तो बहुत बुरा मामला हुआ, स्त्री को तो समाज में ही हालत नहीं है, वो स्त्री बेचारी उस भूत से कैसे लड़े। तब वो कहती है कि ये तो मामला तो बहुत ही गड़बड़ हो गया। तो वो जा कर के कहता है कि हे भाई जो भी है तू, इसके नीचे के दिख तो रहा नहीं है, तू जो भी है तू ऐसा कर कि मैं तेरे को बहुत अच्छा खाना दे सकता हूँ, बहुत अच्छे पकवान ला करके दे सकता हूँ, बस तू लेगा किस में, तेरे पास कटोरा है क्या। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं देखूंगा। वो फिर राजी नहीं होता। पहले वो कहती हीरा मोती दूंगा, फलाना दूंगी, नहीं मानता हो। फिर वो कहता मैं तुझे बहुत अच्छे अच्छे पकवान दूंगा, तो तेरा कटोरा हो तो वो फट से वो प्रेत जो हीरे लगे हुआ एक कटोरा है वो ला कर करके दे देता है और सेठानी को मिल जाता। और इस तरह से मतलब ये जो कहानी की जो एंड है, वो कहानी के एंड ये है कि पुरुष की तो बिसात ही क्या, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि स्त्री का शोषण होता है और फलाना होता है और 2 दर्जे का मामला है, फलाना है, वो मैं भी बहुत लिखा है इसके बारे में। लेकिन वहाँ स्त्री जो है उस भूत को, उस अलौकिक ताकत को हराने की ताकत रखती है। और इसीलिए ये फिर वही वृत्ति है, आप देख लेना ये कौन सी वृत्ति है कि वो भूत जो है वो खाने को मांगता है। ये लालच की वृत्ति है, और जो लालच है वो असुरी आदत है, इसे उसके ऊपर जीतना है।
इसलिए सेठानी जीत जाती है, तो स्त्री की जीत हो जाती है और वो दैंत हार जाता है। उसके बाद वो आना छोड़ देती है, वो कहती है अब मेरे को पानी भरने की कहाँ जरूरत है, दूसरी जगह से मंगा लेंगे, हीरा हीरे कटोरे मिल गए। वो भूत इंतजार ही करता रहता है कि मुझे अब पकवान आएंगे और मैं खाऊंगा। तो स्त्री को ये भी विजयदान देता, जब इस कहानी को लिखते हैं तब इसको ये टिल्ट दे करके विजयदान देता कि यहाँ मनुष्य कभी नहीं आ रहा। मैंने कहा ना कि सबेरे ऊपर मानुष, वो मनुष्यता की जितनी परवाह करते हैं, मैंने बहुत कम ऐसे विशेष हर लेखक यही करता है, लेकिन सीधे सीधे रूप में इस तरह से कोई पक्ष में खड़ा हो मानवता के, ऐसा लेखक मैंने नहीं देखा। फिर आपने प्रीति जी ने एक विषय दिया, उसमें इन्होंने कहा कि जाति को तो छोड़ दीजिए, वर्ग के ऊपर एक उदाहरण वो भी दे देता हूँ। वर्ग में हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा किसान जो है वो उस वर्ग की मेरे यहाँ राजस्थान में बहुतायत, मेजोरिटी में किसान। तो वो जो ये वर्ग है ये मेहनत कश वर्ग है, जो मेहनत करने वाला है, कमा के खाने वाला है, कमा के खिलाने वाला है। तो ये जो वर्ग है, अब इसकी भूत से, उस अलौकिक ताकत से जब भिड़ंत होगी तो आप कोई बता सकता है कि क्या होगा, इसमें कौन जीतेगा? जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, जीतेगा तो मनुष्य ही। पर वो क्या करता है कि वो किसान जो है वो एक दिन भरी दोपहरी में, जेठ की दोपहरी में, जब हमारे यहाँ टेम्परेचर 48-49 होता है, लूहें चलती है, उस समय हल लगा करके जाता है। वो कहता है अपने पास जमीन तो है नहीं, ये मसान की जमीन पड़ी है फालतू की, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। वो हल चलाने लगता है और हल चलाता तो वो देखता कि ऐसी मेहनत करें, मतलब जितना गहरा हम हाँकेंगे इसको तो उतनी ही अच्छी पोली हो जाएगी जमीन और वैसे ही फसल अच्छी होगी। वो जो ही ऐसा करता कि नीचे भूत के परिवार हैं, तो किसी की आंतड़ी में उलझ जाता है वो हल, और किसी की वो कह रहे रोक दो मत करो, ये हल मत चला, हल मत। उसने कहा बेवकूफ हुआ, हल क्यों नहीं चलो, ये तो मेरी वृत्ति है, मैं तो इसके बिना मैं खाऊंगा क्या, और मैं जीऊँ क्यों, मैं किसके लिए जीऊँ अगर मैं हल नहीं चलाऊं। वो कहता है तू हल से क्या होगा, कि भाई अनाज होगा, तो बाजरी होगी कहाँ, तो यार मैं तुझे प्लीज मत हाँ, किसको, हमारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं, नीचे तुझे तो सुनाई नहीं देता, क्रंदन ही क्रंदन हो रहा है, कहीं बच्चा रो रहा है, किसी की आंख में लग गया है वो तेरे हल का आगे का जो नोक है, तो वो उससे वो परेशान है, तो मैं तेरे को बाजरी दे दूंगा, तेरे का यही पर्पज है ना। हाँ वो कहता ठीक है, तुम्हारे कितनी, 1 बीघे में कितनी बाजरी होती है। उसने कहते यहाँ बीघे की बात मत कर। तो वो भूत, वो आकर के भूतों का सरदार आता है, वो कहता है कि ऐसा है कि मैं समझौता करने जा रहा हूँ। वो राजनयिक के रूप में आता है और कहता है मैं समझौता करने जा रहा हूँ। तो कहा कि आप कितना एक्सपेक्ट करते हो, तो उसने कहा एक्सपेक्ट की क्या बात है, वो तो मेरी मेहनत पर है, और कुदरत अगर बरसात हो जाएगी तो यहाँ हो सकती है 25 बोरी बाजरी। तो कहता मैक्सिमम क्या है यार ये तो बता दे, कि 100 मन। तो कहता मैं आपको 100 मन बाजरी दे दूंगा और आप ये काम मत करिए। अब वो मेहनत कश, वो जो वर्ग है, वो वर्ग कैसे हार सकता है भूत से। वो वापस जाता है और वापस जाकर के घर पे जाता है, फिर कहता है यार ये तो काम नहीं हुआ, बाजरी ले आएगा वो मुझे दे देगा, तो ये तो मेरा मतलब ये मेरा प्रोडक्शन नहीं है ये तो, और वो इसलिए मैं उस बाजरी को खा नहीं सकता, मुझे तो अपनी मेहनत का जो अनाज है वो खाना ही श्रेष्ठ है। तब वो वापस से दूसरे दिन आ जाता है और दूसरे दिन जाकर करके और फिर हल चलाने लगता है। और उसे जब ये पता पड़ गया है कि उसको जब पता पड़ गया है कि ये इससे ये त्रस्त है, तो भूतों के सरदार के सामने दूसरे दिन फिर वो प्रकट होता है, कहता अरे बाबा रोक दे इसको। वो कहता नहीं रोक सकता, कि फिर अब तू वापस क्यों आया, कल तक तू मुझे प्रलोभन दे के गया था कि 100 बाजरी दूंगा, 100 मन। वो कहता नहीं मैं तो सिर्फ ये पूछने के लिए आया हूँ कि तू रोक दे दादा, बाजरी लेगा कि आटा लेगा, तो बाजरी को भी तो पीसनी पड़ती है ना, वो भी हम तेरे लिए प्रिपेयर करके ला देंगे, ये हल का काम मत कर। लेकिन कहानी अंत में वो जो वर्ग है, किसान का जो वर्ग है, वो भी इस अलौकिक नेगेटिव ताकतों से हारता नहीं और जीत उसे की। और अब मेरे पास स्लिप भी आ गई है,
तो मैम तो है नहीं, आपको आपको 1:30 बजानी है, मैसेज आया। अच्छा अच्छा। तो मैं अंत में जो कि मेरा खास विषय था, मैं ड्रैकुला की इस 8 राजकुमार में से 5वें राजकुमार पर से तुलना करना चाह रहा था। वहाँ एक विजयदान देता, बस अंत में ये वो बहुत उसके बारे में आधा घंटा आपसे सोच रहा था कि मैं बताऊंगा, लेकिन नहीं है दुर्भाग्य मेरा। मैं भी अगर अलौकिक ताकत होता ना, मेरे में भी भूत का अंश होता ना, आप सब लोगों को मजबूर कर देता कि आप मेरे को टोक नहीं सकते, आप मुझे टोक नहीं सकते। अलौकिक ताकत तो हारी ना, जीता तो मनुष्य ही तो। वही जीतेगा। तो उसमें एक विजयदान देता है, जिन्न की सृष्टि करते हैं, एक दैत्य तो बनाते हैं, लेकिन वो दैत्य बड़ा अजीब है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि दैत्य को हम कोई न कोई गुण दे दें। जैसे हम किसी भी पात्र की सृजना करते हैं तो हम उसके लिए वो कैसा है, दिखने में क्या है, उसकी क्या आदतें हैं, इससे हम साहित्य में लेके आते हैं, उस पात्र को एस्टेब्लिश करते हैं। विजयदान देता जानते हैं कि ये दैत्य है, फिर भी उनको तसल्ली नहीं है, क्योंकि वो मनुष्यता के पक्ष में खड़े हैं, जैसा मैंने पहले आपसे कहा। तो वो क्या करते हैं कि उस दैत्य की बड़ी अजीब तरह से उपस्थिति क्रिएट करते हैं, और ऐसी एक जो रहट के ऊपर घड़ियाल होता है, एक मिट्टी की घड़ी होती है, उसके जैसा तो उसका सर है। आपने जो स्वरूप साहब ने जो एलियन कथाओं के लिए आप देखा हो, तो आपको बड़े अजीब अजीब एलियन पुरुष दिखते हैं। जैसे 10 मुंह वाला रावण मैंने बता दिया, वो बड़ा ऐसा है, गंजा है, और उसके ऊपर दुखने हो रखे हैं, मतलब वो टाट के अंदर एक रोग होता है खुजली का, तो वो बहुत खुजली चलती है, और दैत्य है तो उसके तो नाखून बहुत बड़े हुए होते हैं, तो वो खुद को परेशान करता रहता है। लेकिन अब उन्होंने एक एक्स्ट्रा क्वालिटी डालते हैं विजयदान देता उसमें, और वो ये कहते हैं कि वो 1 नंबर का माइजर था, बहुत कंजूस वृत्ति थी, और वो कंजूस वृत्ति के कारण से ढाब के रोटी भी नहीं खाता था। अब देखिए हम क्या आरोपित जब हम करते हैं ना, तो क्या क्या चीजें आरोपित कर सकते हैं हम इसके ऊपर। ये क्रिएशन, ये दैत्य उस लोक कथा वाला दैत्य नहीं है, ये विजयदान देता का दैत्य है, जो ये कहता है कि इस तरह से करते कर अब उसकी जो क्वालिटियां हैं वो ये करता है। वो क्या करता है कि जो 7 बहनों की एक भाई होता है, 7 भाइयों की एक बहन होती है, उसको जब शादी हो रही होती है मंडप से उठाता है उसको, और ले जा करके अपने उस कैसल में कैद कर देता, और वहाँ पर 7 तहखाने बने हुए हैं, उनमें उनको उसकी गर्दन काट करके उसको उल्टा लटका देता, और उसकी खोपड़ी को भी, मूंडकी को भी लटका देता, और उसमें से बूंद जो खून गिरता है वो उस होद में गिरते ही मोती बन जाता। कल्पना करिए विभत्स, और कैसे भय का वातावरण, मतलब आप ये इसको चाक्षुष दृष्टि से इस बिंब को सोचेंगे तो उसी में सिहर जाएंगे कि ये क्या कर दिया। और वो इस तरह से लगातार, और उसके पास 7 वो बहुत बड़े बड़े भंवारे हैं, और उसकी यही इच्छा है कि ये 7 भंवारे ये हीरे ये मोतियों से भर जाएं, और इसके लिए वो हर बार वो खत्म होती है, उसको उतार के फेंकता, उसका खून खत्म हो जाता, दूसरी स्त्री को उठा के लाता है, उसको काटता है। इस तरह से करते करते उसके 6 भंवारे जो हैं वो पूरे के पूरे भर गए। 7वां है वो भी लगभग भरने को, और तभी हमारे नायक की, मैं उस कथा नहीं कहूँगा, उस नायक का प्रवेश हो जाता। सामान्यतः लोक कथा में ऐसा होता है कि हम उस भूत को मार देते हैं, या उस दैत्य को मार देते हैं, या उस राक्षस का वो कर देते हैं, लेकिन विजयदान देता उसको नहीं मारता। और वो जो नायक है, मनुष्य जो है, वो जाकर करके उससे कहता है कि अरे वाह, तू तो बहुत ही काम का आदमी है, तेरे में ये वृत्ति है, तेरे को तो बहुत अच्छा है, पर तू ये बता तू ये इसका क्या करेगा। तो वो एक मूंडकी जो जीवित है, वो उससे पूछती है, उससे कहती है मनुष्य से कि जरा तू पूछ के ये इतना सारी ये संपत्ति इकट्ठी कर रहा है, इसका क्या करेगा। और साहब मैं वो उदाहरण भी लेके आया हूँ, पर खैर छोड़िए। वो कहता है कि मैं संसार का सारा रूप खरीदना चाहता हूँ, कोई भी रूप मेरे अलावा कोई भी सुंदर ना हो, मैं सबकी भूख खरीदना चाहता हूँ, मैं उनका वो जितनी भी मनुष्य की सामान्य प्रक्रियाएं हैं उन पे सब पे आधिपत्य चाहता हूँ, और ऐसा आधिपत्य के दूसरा किसी के पास ना हो। अच्छा, आप इस कहानी को पढ़ते हैं तो मुझे तो 2 बातें समझ में आती है।
एक तो दैत्य किस तरह से बनता, दैत्य तो है ही, लेकिन विज्ञान देता ग्रेजुअली 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 उसको मनुष्य का जो ये इस तरह से क्षरण है, यही तो दैत्य का बनना है। और इसको आप जब पढ़ेंगे तो मुझे नहीं कहना चाहिए पर आपकी स्मृति में भी एक व्यक्ति उभरेगा जिसको संसार के सारे रेयर अर्थ चाहिए अभी, और वो